الشيطان من المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم وغائبهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما. صلوات. ایک مرتبہ سب مل کے بابا جے بلند صلوات پڑھنے. 1442 ہجری کا ماہ محرم ہے اور سلسلہ گفتگو کی 6ٹھی مجلس آج آپ کی بھرپور روحانی سماعتوں کے لیے ہدیہ ہو رہی ہے. ہمارا عنوان ہے حدیث قصہ میزان تہذیب ہے اور ہم مستقل اپنے عنوان سے جڑے ہوئے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کسی حد تک حدیث قصہ کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. آج کی مجلس میں میں یہ دیکھ رہا ہوں بچے بھی موجود ہیں میرے آگے, نوجوان بھی سن رہے ہیں اور بزرگ روزانہ تشریف لاتے ہیں. یعنی 3 نسلیں اس وقت ذکر حسین سن رہی ہیں. 3 نسلیں اس وقت ایک ساتھ مصروف عبادت ہیں. اور وہ الگ بات ہے کہ جو بچے سن رہے ہیں ان پر ابھی نماز واجب نہیں ہے, روزہ ابھی پر واجب نہیں ہے, حج پر واجب نہیں ہے, علی کی ولایت پر سے واجب ہے. اور یقیناً یہ بچے اسی سائے میں پلے ہیں اور علی کی محبت پر جوان ہوں اور آگے آنے والی نسلوں تک غدیر کا پیغام اسی طرح پہنچائیں جیسے ہمارے بزرگوں نے ہم تک پہنچایا ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, اسلام میں لوگ بہت سے گزرے ہیں, شخصیات بہت سی مشہور ہوئی ہیں, لیکن نام ہر کسی کا نہیں ہوا. لاکھوں ہزاروں لوگ پیغمبر کے زمانے میں تھے لیکن آج ان کا نام لینے والا کوئی نہیں ہے. علی پر 90,000 ممبروں سے تبرہ کیا گیا اور کتنی سازشیں کی گئی, مگر پھر بھی یہ معجزہ ہے ذکر علی کا, کیونکہ اس کی ذمہ داری خدا لے چکا ہے. نہ قرآن رکھے گا نہ ذکر علی رکھے گا. نہ قرآن رکھے گا, نہ شریعت ختم ہو سکتی ہے, نہ لا الہ کو کوئی مٹا سکتا ہے اور نہ ذکر آل محمد کو کوئی مٹا سکتا ہے. ظاہر ہے جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے, وقت ہمارے پاس بہت کم ہے, اس لیے ذرا بھی کسی بھی رکاوٹ کا یہاں پر موقع نہیں ہے. کل کی گفتگو یہاں پر آ کر رک گئی تھی کہ اللہ اپنے ملائکہ سے کہہ رہا تھا یہ بتاؤ چادر کے نیچے کون ہے. حالانکہ وہ خالق ہے, وہ جانتا ہے, اسی کے بھیجے ہوئے تھے, مگر پھر بھی ملائکہ سے پوچھ رہا تھا کہ کیا تمہیں پتا ہے کہ چادر کے نیچے کون ہے. ملائکہ بھی جانتے تھے, چکی تو چلاتے تھے روزانہ, گھر کو جھاڑو دے رہے ہیں, آیتیں لے کر آ رہے ہیں, سب جانتے ہیں, دھول بنا رہے ہیں, سارے کام فاطمہ کے گھر کے ملائکہ کر رہے ہیں. غیروں سے تو پوچھا نہیں جا رہا تھا, جن سے پوچھا گیا اس میں جبریل بھی تھے, میکائیل بھی تھے, اسرائیل بھی تھے, اسرافیل بھی تھے, سب کھڑے ہوئے تھے, زمانے محمد کو پہچانتے تھے یہ چادر کے نیچے کون ہے. مگر کہنا پڑا مالک کون, تو خدا نے بھی کہا آسمان نہ بنایا مگر ان کی محبت میں, زمین نہیں بنائی مگر ان کی محبت میں, چاند سورج ستارے نہیں بنائے مگر ان کی محبت میں, کشتیاں نہیں چلائی ہم نے مگر ان کی محبت میں. پتہ یہ چلا زمین بنی ہے اہل جسم کی محبت میں. لوگ یہ کہتے ہیں ہم نے ان کے لیے زمین بنائی, زمین ان کے لیے نہیں بنی ہے, زمین آپ کے لیے بنی ہے. زمین آپ کے لیے بنی ہے تاکہ آپ اس پر رہیں, آپ اس پر چلیں, آپ اسی میں دفن ہو جائیں. مگر یہ ذہن میں رہے
जिस जमीन में तुम्हें जाना है और तुम्हारी कब्र बननी है वो बनी है आले मोहम्मद की मोहब्बत में। अब अगर जिंदगी में दुश्मनी करोगे जाना तो इसी कब्र में है, तब पता चलेगा हशर क्या होगा। हमने नहीं बनाया कुछ मगर इनकी मोहब्बत में तो पता ये चला, चांद बना इनकी मोहब्बत में, सूरज बना इनकी मोहब्बत में, सितारे बने इनकी मोहब्बत में, जमीन बनी इनकी मोहब्बत में, आसमान बने इनकी मोहब्बत में, कश्तियां नहीं चलाई गई मगर इनकी मोहब्बत में। अगर सब कुछ इनकी मोहब्बत में है तो खुद बहुत ये बात साबित हो रही है, सूरज भी अली का गुलाम है, चांद भी आले मोहम्मद का गुलाम है, जमीन भी आले मोहम्मद की कनीज है। जब चाहे आते हुए जलजले को रोक दे, जब चाहे चांद को तोड़ दे, जब चाहे सूरज को बजा दे, जब चाहे सितारे को दरवाजे पे बुला दे। अल्लाह ने सूरज इनकी मोहब्बत में बनाया है, हदीस के साथ चांद इनकी मोहब्बत में बनाया है, सितारे इनकी मोहब्बत में बनाए हैं। मैं नहीं मान सकता, मैं ये बात नहीं मान सकता कि अल्लाह सूरज को बनाए इनकी मोहब्बत में और सूरज इन्हें न पहचाने। अकल में ये बात समझ में नहीं आती। अल्लाह चांद बनाए के लिए चांद इन्हें न पहचानता हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। मगर अल्लाह ने आसमान का निजाम ऐसा रखा कि सूरज पूरे दिन चमकता रहे। सुबह के वक्त निकले, अपने सफर को तय करे, मगरिब में जाकर डूब जाए और जैसे ही मगरिब में डूबे वहीं से चांद निकले, जहाँ सूरज डूबे वहीं से चांद निकले। पता चला चांद और सूरज भी लाफसिल हैं। अल्लाह आसमान के निजाम में भी नूरानी सिलसिले में कोई रुकावट पैदा नहीं करता। इधर सूरज डूबे उधर चांद निकले, इधर सूरज डूबे उधर चांद निकले। वह शब्द बज रहा, वह कमर इधर रहा, सूरज मोहम्मद चांद अली। अब इधर मोहम्मद जाए तो चांद अली बनकर तलू हो गए बाहर से। और सितारे भी बनेंगे मोहब्बत में। तो आप तसव्वुर कर लीजिए, अगर सूरज नबी हैं और चांद अली हैं तो सितारे उम्मत हैं, सितारे उम्मत हैं। हदीस भी आई कि मेरे असाब सितारों की मानद हैं, मेरे असाब सितारों की मानद हैं। यकीनन हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। हमसे ज़्यादा एहतराम ना सलमान का आज तक किसी ने किया, ना अम्मार का किया, ना अबूजर का किया, ना बिलाल का किया, ना जाबिर का किया। सारा एहतराम सहाबा को हमारे यहाँ से चला है, जो कि सीधी बात है। आकर किताबें हम तो सलमान को रज़ी अल्लाह नहीं अलैहिस्सलाम लिखते हैं, अम्मार को अलैहिस्सलाम लिखते हैं, अबूजर को अलैहिस्सलाम लिखते हैं। तो ये तो हमारी किताब। और कहते भी हैं लोग अहले सुन्नत भाई हवाले देते हैं, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मगर एक सवाल कर रहा हूँ, कुरान ने बता दिया सूरज मोहम्मद है, चांद अली है, और नबी ने कहा मेरी उम्मत सितारों की तरह है, सितारों की तरह है। कुरान ने सूरज की तो कसम खाई, चांद की तो कसम खाई। मैंने पूरा कुरान देख लिया, कहीं सितारों की कसम खुदा ने नहीं खाई है। सूरज की कसम है, चांद की है, सितारे की कसम पूरे कुरान में कहीं नहीं है। सिर्फ एक सितारे की कसम है, वह नजमे इज़ा हवा, वो सितारा जो तरे ज़हरा पर उतरा। हर सितारा कसम के लायक नहीं है, जो तरे ज़हरा पर आए उसकी खुदा कसम खाता। सितारा तरे ज़हरा पर आया। भाई मैंने पता नहीं कल कहा था या परसों कहा था, एक तो ज़हन ऐसा हो गया रोजाना 4-4 मजलिसें 5-5 मजलिसें होती हैं, याद ही नहीं रहता कहाँ क्या पढ़ा है। लेकिन पढ़ा है, कल या परसों पढ़ा था कि जो सरकार आई
लोगों को हजम नहीं हो सकी, आसमान से कैसे आ गई। अब जब सितारा उतरेगा तो किसको हजम होगा? तलवार के लिए तो ऐतराज कर दिया कि कहा कोई कारखाना नहीं है, हथौड़े नहीं होते, तो आसमान पे तो प्रकाश कैसे आ सकती है? सितारे तो आसमान पे होते हैं ना, सितारे जमीन पे तो नहीं होते। इसलिए कह दिया कि सितारा तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता? जब सितारे बड़े होते हैं दुनिया छोटी होती है। ये मुमकिन नहीं है इतना बड़ा सितारा छोटी सी दुनिया के अंदर आ जाए। अच्छा, तो फिर आगे क्या करना है? भाई मैंने बड़ा गौर किया कि एतराज लोगों को क्यों है। तो जब मैंने बहुत गौर किया एक ही बात मेरे समझ में आई, और वो ये कि सितारा आया था ज़हरा की शादी का फैसला करने के लिए, और रसूल से बहुत बड़े बड़े लोग पहले से कह चुके थे कि हमारी शादी फातिमा से करा दीजिए, हमारी शादी करा दीजिए, हमारी शादी करा दीजिए। तो रसूल ने कहा था ये फैसला मेरा नहीं है, अल्लाह का है। अल्लाह जिससे चाहेगा उससे फातिमा की शादी होगी। अब पता चला जहां ज़हरा का अक्द नहीं हो सका वो अली की ये फजीलत बर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने कहा सितारा तो आ ही नहीं सकता, सितारा तो भाई सितारा तुम्हें बताने के लिए आया है, वरना अल्लाह तो पहले ही अली और ज़हरा का अक्द आसमान पे कर चुका था, आसमान पे कर चुका था। सितारा बड़ा है, जमीन छोटी है, सितारा आ ही नहीं सकता। अब सुनिए हदीस, सही बुखारी की हदीस। एक दिन किसी ने नबी से पूछा, या रसूल अल्लाह आपने जिब्रील को देखा है अपनी आंखों से? कहने लगे देखा है, क्यों नहीं देखा? यही तो खुसूसियत है हमारे नबी की। कुछ नबी सिर्फ जिब्रील की आवाज सुनते थे, मोहम्मद जिब्रील को मुजस्सम देखते थे। जिब्रील जब आते थे मुकम्मल रसूल को नजर आते थे। एक तरफ तो कहते हो नबी हम जैसा था, दूसरी तरफ नबी से बोलते हो जिब्रील को देखा है या नहीं देखा है? अगर तुम भी मोहम्मद जैसे हो तो जिब्रील को बुलाओ देख लो। मगर नहीं, ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता। इसलिए कि अगर जिब्रील को देख लिया तो अंधे हो जाओगे। आंखों में इतनी ताकत नहीं है कि बराह रास्त मलक का नजारा कर सके। आंखें अंधी हो जाएंगी, नूर चला जाएगा। आंखों में इतनी ताकत ही नहीं है कि मलक का नूर अपने अंदर बर्दाश्त कर सके। ये इंसान का मामला है कि मलक के नूर को अशरफुल मखलूकात बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगर जब मलक छुपा लेने जमीन पर आते हैं तो नबी हुसैन से मत नहीं करते, नहीं हुसैन से मत नहीं करते। बल चल रहा है, कितने वोल्ट का है ये बल? कितने वोल्ट का होगा? 1000 वोल्ट का है। 1000 वोल्ट के बल्ब को इतनी ही बिजली दी जाएगी जितनी बर्दाश्त कर सके। अगर 1000 वोल्ट के बल्ब में 5000 का करंट छोड़ दें फट जाएगा। और अगर 50 वोल्ट का बल्ब हो तो उसको 50 वोल्ट ही की रोशनी मिलेगी। अगर 100 का हो 100 ही के बराबर मिलेगी। 1000 वोल्ट का हो 1000 ही देंगे। अगर 10 से ज्यादा दे दिया, अगर 10 से ज्यादा दे दिया तो फट जाएगा। फिर शाबान को छिपा लेने के लिए आया था और छिपा हो नहीं सकती थी जब तक नूर न मिल जाए। हुसैन भी नूर है। अगर फरिश्ते को फितरत को हुसैन से मत कर देते तो जितना ज़र्ब होता है उतना नूर देना होता है। नबी ने कहा ये हुसैन के काबिल नहीं है, झूले के नूर से मिलाओ। झूले का नूर इसके लिए काफी है। मलक का धर्म इतना है कि झूले का नूर आता है, काम हो जाता है। हुसैन की बात तो बहुत दूर की है, आले मोहम्मद की तो बहुत दूर की। नबी से पूछा गया आपने जिब्रील को अपनी आंखों से देखा है? कहने लगे कैसी बात करते हो, देखा है? तो कहने लगा दिखने में जिब्रील कैसे हैं, नजर में कैसे आते हैं? रसूल ने कहा सुनो, अगर पर को यूं कर दे जिब्रील
तो आखिरी सिरा जो मशरिक का है वहां तक जिब्रील का पर्चा है। और अगर यूं करते हैं तो मगरिब तक जो आखिरी हिस्सा है वहां तक जिब्रील का पर्चा है। अगर सर को उठा लें तो जो अर्श का आखिरी हिस्सा है वहां तक जिब्रील का पर्चा है। और अगर पैरों के नीचे फैला दें तो जमीन के नीचे तक का आखिरी हिस्सा जो है वहां जिब्रील के पैर जाए। भाई जिब्रील पर फैलाएं तो आखिरी हिस्से तक जाए, यूं फैलाएं तो आखिरी हिस्से तक जाए, सर ऊपर करें तो आखिरी हिस्से तक जाए, पैर नीचे करें तो आखिरी हिस्से तक जाए। अब जुमला जाया न करना, इतना बड़ा जिब्रील ज़हरा की चादर में आ सकता है, सितारा सितारा तेरे ज़हरा पे नहीं आ सकता। और कुरान कहे उतरते हुए सितारे की कसम, सिर्फ उस सितारे की कसम जो तेरे ज़हरा पे आया। अच्छा भाई तवज्जो है, सूरज मोहम्मद है, चांद अली हैं, सितारे उम्मत हैं। तारे कभी दिन में नजर नहीं आते। जब सूरज निकलता है तो दिन में तारे नजर नहीं आते, बहुत लोगों को दिन में भी नजर आ जाते हैं। नहीं समझे मुहावरा? लोग कहते हैं दिन में तारे तो नजर नहीं आ गए, दिमाग तो ठीक है। पता चला तारों की जगह रात में है, तारों की जगह है रात को, चांद की जगह है रात को, सितारों का इम्तिहान है रात को। अब हमने आसमान को देखा और कहा चांद भी चमक रहा है, सितारे भी चमक रहे हैं, क्या खूबसूरत आसमान अल्लाह ने बनाया। खूबसूरत रात, अंधेरी रात, और अंधेरी रात में जब चांद चमकता है और रोशन हो जाता है, और जब अतराफ में सितारे चमकते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे गंगा जमनी हो रही है, खूबसूरत काम किसी दुपट्टे पे हुआ हो और सितारे चमक रहे हो, खुदा का आसमान बिल्कुल ऐसा मालूम होता है। लेकिन थोड़ी देर गुजरी तो दोस्त ने शादी को हिलाया हाथ को, और कब वो देखो, मैंने कहा क्या हुआ? कब टूटता हुआ तारा, टूटता हुआ तारा गया। अब समझ में आया सितारे टूटते भी हैं, रात के वक्त जब चांद चमक रहा हो तो सितारे टूटते भी हैं। किससे दुश्मनी है जो जले जा रहे हैं? अरे भाई नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूँ? अली चांद है, सितारे उम्मत है। अब उम्मत में तलाश करो कौन जल रहा है अली से। हाँ, अगर एक सितारा होता है किस्मत का, किस्मत का, मेरा है मुश्तरी, मुश्तरी। अब सारे सितारे पटा लिए, किसी का उतारत है, किसी का मुश्तरी है, किसी का दोहल है। सितारे 12 सितारे हैं, 12 वो हर एक के बुर्ज में होते हैं। और जब बुर्ज में वो सितारा आ जाए तो आप कहते हैं कि साहब हमारा सितारा आजकल बुलंदियों पर है, इसलिए कि किस्मत का सितारा है, किस्मत का सितारा है। मैंने सितारे टूटते हुए तो देखे, मगर आज तक नहीं सुना। अरबों साल गुजर गए, मुश्तरी आज तक टूट के नहीं गिरा, जोहल आज तक टूट के नहीं गिरा, किस्मत के सितारे आज तक टूट के नहीं गिरे। 12 के 12 आज तक वैसे चमक रहे हैं, लेकिन कुछ गिर रहे हैं, लेकिन 12 सितारे अपनी जगह है। अब पता चला कुछ सितारे रात को अली से जल के टूट रहे हैं, और कुछ है जो अरबों सालों से अली के साथ है। सलमान नहीं टूटा, अबू बकर नहीं टूटा, मिकदाद नहीं टूटा, अम्मार नहीं टूटा। मिकदाद नहीं टूटा, अम्मार नहीं टूटा। इसलिए हम निजाम शक्ति को देख रहे हैं, हम चांद को देख रहे हैं, हम सूरज को देख रहे हैं, हम सितारों को देख रहे हैं। और खुदा कह रहा है अगर इनकी मोहब्बत न होती तो मैं कुछ न बनाता। पता चला ये सब अच्छी तरह अली को पहचानते हैं, ये अच्छी तरह फातिमा को जानते हैं, ये अच्छी तरह हसन हुसैन को जानते हैं। मस्जिद नबवी का ज़हन था, रसूल मस्जिद में बैठे हुए थे, अज़हाब का मजमा था, सूरज पर बात हो रही थी। सूरज को अल्लाह ने कैसे खल्क किया? तो एक मरतबा
पैगंबर अली से मुखातिब हुए और कहा या अली, कल जब सुबह होगी और सूरज निकलेगा तो तुम मस्जिद नबवी के पीछे जो मैदान है वहां चले जाना और तन्हा मत जाना, फला 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 तुम्हारे साथ जाएंगे। नाम लेने की जरूरत क्या है? अली जाना मस्जिद के पीछे जो बहुत बड़ा मैदान है वहां अपने साथियों को ले जाना और ले जाने के बाद वहां खड़े हो जाना। अली ने कहा या रसूल अल्लाह फिर क्या करो? कहा अली, सूरज तुमसे कुछ सवालात पूछना चाहता है, जाकर सूरज से बातें करना। बड़ी आसानी से सुन लिया। बना है अली की मोहब्बत में तो अली को नहीं पहचानेगा। और अली अपनी पहचान कराएंगे। इंसानों से बात करने वाले और होते हैं, सूरज से बात करने वाले और होते हैं। 7 मरतबा, कितनी मरतबा? 7 मरतबा अली ने सूरज से बातें की, 7 मरतबा। और ये खुद एक मुस्तकिल उन्वान है कि हर गुफ्तगू में नई बात, हर गुफ्तगू में नई बात। और पहली बार जब गए, जब रसूल ने हुक्म दिया, मस्जिद के पीछे गए, असहाब का मजमा साथ साथ चला, तवज्जो है। अली आए, सूरज की तरफ देखा और एक जुमला कहा, अस्सलाम अलैका या खल्क़ल जदीद, ऐ अल्लाह की नई मखलूक तुझ पर सलाम, ऐ अल्लाह की जदीद मखलूक, ऐ अल्लाह की नई मखलूक तुझ पर सलाम। भाई हमारे तैमूर साहब बहुत पुराने हैं यहाँ के, इस इमाम वाले को बनते हुए देखा है। जिस जमाने में ये जवान थे, हालांकि अभी भी जवान है, भाई अली की मोहब्बत में कोई बूढ़ा हो सकता है? इन्होंने, और हमारे नाना भाई यही कहीं पीछे होंगे, मेरे ख्याल से वो कोने पे बैठे हुए हैं, उन्होंने पुराना साहिवाल देखा है अपने बचपन में। जब ये जवान छोटे से रहे होंगे तो पुराने मकानात इन्होंने देखे होंगे। अब जो साहिवाल है वो इनके लिए नया है, इसलिए कि बना उनके सामने तो नया है, जो उनसे पहले था वो कदीम है, जो उनके सामने बना है वो उनके लिए नया है। लोग हैरानी से कहेंगे कितनी प्यारी बिल्डिंग है, तो वो पीछे हाथ मार के कहेंगे बेवकूफ, हमारे सामने तो बनी है, तुम तो बच्चे हो, तुम्हें क्या पता है हमारे सामने की बनी हुई है, ये तो अभी बनी है 10 साल पहले, मेरे लिए नई है, तुम्हारे लिए पुरानी है, तुम बाद में आए हो, तुम्हारे लिए पुरानी है, हमारे सामने बनी है, हमारे लिए नई है। अली ने सूरज को कहा, ऐ अल्लाह की नई मखलूक, आगे भरा जुमला, इससे ज्यादा क्या समझाओ? पता चला जब कोई नहीं था और खुदा सूरज को बना रहा था, अली आंखों से देख रहा है। ऐ अल्लाह की नई मखलूक, ऐ अल्लाह की नई मखलूक, खल्क़ल जदीद, अल्लाह की जदीद खिलकत, तुम पर अली का सलाम हो। अरे जब सलाम अली ने ऐसा किया हो तो खुदा जाने सूरज का जवाब कैसा होगा। जब सूरज अली के सामने बना है तो सूरज भी तो देख रहा होगा। जब खुदा को उधर डाल रहा था, अबू तालिब को भी न देख रहा था। ऐ अल्लाह की जदीद खिलकत, तुम पर सलाम। जवाब तो वाजिब होता है, जवाब तो वाजिब होता है। सूरज ने अली का चेहरा देखा और देखकर कहा, अलैका सलाम या अव्वलो या आखिरो या ज़ाहिरो या बातिनो या मन हुआ बिकुल्लि शैइन अलीम। ऐ अव्वल तुम पर सलाम, ऐ आखिर तुम पर सलाम, ऐ ज़ाहिर तुम पर सलाम, ऐ बातिन तुम पर सलाम, ऐ हर शय के जानने वाले तुम पर सलाम। हवाला महफूज है, किसी को चाहिए दे दूंगा। अब अली तन्हा तो नहीं थे, अकेले तो नहीं थे, और भी लोग साथ थे। उन्होंने आवाज को सुना, अली गुफ्तगू करके चले गए। इसलिए कि अली के लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं, से बात करना कौन सी बड़ी बात है। अली खामोशी से चले गए। जो साथ थे वो गए रसूल अल्लाह के पास और कहा या रसूल अल्लाह आज तो अजीब बात हो गई। कहने लगे क्या हुआ? कब सूरज ने अली को उन सारे नामों से पुकारा है जो हम कुरान में अल्लाह के लिए पढ़ते हैं।
بھی اللہ ہے، ظاہر بھی اللہ ہے، باطن بھی اللہ ہے۔ توحید ہم نے سکھائی ہے کائنات کو، ہم سے زیادہ آل محمد کے گھرانے سے زیادہ توحید کا کوئی پرچار کرنے والا نہیں ہے، مگر جہاں ہم خدا کو ناشریک مانتے ہیں وہاں آل محمد کو مظہر صفات الہی بھی مانتے ہیں اور مظہر رضائل بھی مانتے ہیں۔ اس لیے ہر بیان میں توحید محفوظ رہنی چاہیے کہ اللہ اور آل محمد کے درمیان جو ایک فاصلہ ہے اس کو مد نظر رکھ کے ہر بات کو بیان ہونا چاہیے۔ قرآن نے اللہ کو اول بھی کہا، آخر بھی کہا، ظاہر بھی کہا، باطن بھی کہا، ہر شے کا جاننے والا کہا۔ جن کے ظرف کم تھے وہ چھلک گئے، برداشت نہیں کر سکتے اور کہا یا رسول اللہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ انہی ناموں سے پکارے جو قرآن جو سورج انہی ناموں سے پکارے جو قرآن میں اللہ کے لیے آگے ہوں۔ تو نبی نے چہرے کو دیکھا اور دیکھ کر کہا غلط کیا کہا ہے، غلط کیا کہا ہے، کہا اللہ اول ہے، کہا علی بھی اول ہے، کہا وہ کیسے، کہا سب سے پہلے اس نے مجھ پر اپنے ایمان کو ظاہر کیا ہے، تم بعد میں مسلمان ہوئے ہو، علی پہلا مسلمان۔ ایمان ظاہر کیا ہے، لائے نہیں ہے ایمان، ایمان لائے نہیں ہے، ظاہر کیا ہے۔ جو خود کل ایمان ہو، بھائی توجہ رہے، جو خود کل ایمان ہو، کہا علی اس میں اول ہے، اس میں اول ہے، کہا آخر اس لیے ہے کیونکہ مجھے غسل دے گا آخر میں، اس لیے علی آخر ہے۔ کہا ظاہر اس لیے کہ پوشیدہ علم علی سے ظاہر ہو گئے۔ کہا باطن کیسے، کہا باطن ایسے کہ میرے باطن کو چھپانے والا علی ہے، کہا ہر شے کا جاننے والا کہتے، کہا علی سے زیادہ میری امت میں نہ کوئی حلال جانتا ہے نہ کوئی حرام جانتا۔ سورت نے علی سے باتیں کی، بڑا تعلق ہے سورت کا علی سے، بڑا تعلق ہے سورت کا علی سے۔ کتنے لوگ نجف گئے ہیں، ہاتھ اٹھائیں، نجف کتنے لوگ گئے ہیں؟ بہت کم تعداد ہے بھائی، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، تو فخر کا مقام ہے کہ لوگ گئے، ہم بھی نجف گئے۔ خدا کرے جو نہیں گئے اسی سال نجف کی زیارت کریں، اسی سال نجف کی زیارت کریں۔ جب میں نجف اشرف گیا اور علی کے روضے میں پہنچا اور سلام کر کے روضے میں داخل ہوا تو میں نے ایک کتاب میں یہ پڑھا تھا کہ جب نجف میں سورج نکلتا ہے تو پہلی کرن علی کی ظہری میں آتی ہے۔ ساہیوال والوں کہا ہو، میں کچھ کہہ رہا ہوں، پیچھے سے آواز نہیں آ رہی۔ جب نجف میں سورج نکلتا ہے تو جو کرنیں پھوٹتی ہیں سورج سے، پہلی کرن علی کی ظہری میں آتی ہے۔ وجہ معلوم ہے؟ وجہ یہ ہے کہ علی کا روضہ بنا ایسے ہے، اس کا ڈیزائن ایسا ہے، انجینئر کا کمال یہ ہے کہ اس نے کھڑکی گنبد میں ایسی جگہ بنائی ہے جہاں سے سورج کی پہلی روشنی آتی ہے۔ کتابوں میں پڑھا تھا میں نے کہ ایسا ہوتا ہے، میں نے کہا جب میں جب جاؤں گا تو جا کر پتہ کروں گا کہ ہوتا کیا ہے۔ میں گیا، حرم میں داخل ہوا، خادم کو آواز دی، کہا بھائی میں نے سنا ہے کہ پہلی کرن علی کی ظہری پہ آتی ہے۔ کہنے لگے ہاں، میں خادم ہوں حرم کا، مجھے پتا ہے۔ میں نے کہا کہاں پر آتی ہے؟ وہ مجھے لے کر گیا ظہری کے پاس، اشارہ کیا، کہا یہ تو جگہ ہے یہاں پر سورج کی پہلی کرن آتی ہے۔ اب جب میں نے تحقیق کی اور پتہ لگایا تو پتہ چلا جہاں علی کے قدم ہے وہاں پر آتی ہے۔ سورج نکلتا نہیں ہے نجف میں جب تک علی کے پاؤں چھوٹتا ہے۔ خدا سلامت رکھے، سورج نکلتا نہیں ہے جب تک علی کے پاؤں کا پیشہ نہ دے دے۔ اور سائنس یہ کہتی ہے کہ جو پہلی کرن سورج سے پھوٹتی ہے وہ سب سے آخر میں واپس جاتی ہے۔ جب سورج نکلتا ہے تو پہلی کرن چھوٹتی ہے، سورج آگے بڑھتا رہتا ہے، کرن اپنی جگہ رہتی ہے۔ جب ڈوبنے لگتا ہے تو سب سے آخر میں وہ کرن جاتی ہے تو سب سے پہلے نہیں ہوتی ہے۔ اب پتہ چلا آتا ہے تو پاؤں چھوٹتا ہے، جاتا ہے تو
अगला जुमला कैसे सुनोगे जो मैं कहने जा रहा हूँ? आगे से लेकर पीछे तक हाथ अगर उठाए तो मुझे जुमले की कीमत मिल जाएगी। आज खुशी खुशी वापस जाऊंगा कि साहिवाल वालों ने मेरे जुमले की ताज वैसी दी है जैसा मैं जा रहा था। आगे से लेकर पीछे तक सूरज आता है तो अली के पाँव चूमता है, जाता है तो अली के पाँव चूमता है। सूरज से पूछो आखिर इतना लर्जा क्यों है, इतना खौफ क्यों है? आते हो तो अली के पाँव, जाते हो तो अली के पाँव। खौफ के बात का है तो शायद आवाज आए किसी और का राजा नहीं है, उसका राजा है। अगर गुस्सा आ गया तो बेईमान है। ऐसे के मानने वाले हैं, अगर ऐसे के मानने वाले हैं। कौन है मुश्किल के शान सेट होना चाहिए? नबी ने भाई को बिस्तर पर सलाकर ये बता दिया यार और भाई में डिफरेंस होना चाहिए। दिल से मोहब्बत अली जब हमारे फूल जाए तो मैं क्या करूँ? वो मोहब्बत फट के बाहर आ जाए तो मैं क्या करूँ? बहरहाल ये बात भी नहीं मेरे मजी तो होगी, आपका मोहब्बत, आपकी जज्बा, आपकी रुबाइयाँ, आपके शेर अपनी जगह, लेकिन जाहिर है बात को भी पूरा होना है और हमें मसाइल सारा वक्त देखना है, आगे भी जाना है, आपको भी जाना है। तो ये सारी चीजें हैं, इसलिए वक्त नहीं होता। अली के एक इशारे पे सूरज वापस पलट आता है। और अगर कभी नजर जाना तो मेरे जुमले को याद रखना, जब बाबे किबला से अली के हरम में दाखिल होते हैं तो दाखिल होते ही सामने एक दीवार आ जाती है। उस दीवार के ऊपर सोने का मीदाब लगा है, परनाला मीदाब सोने का, जैसा काबे में लगा है वैसा अली के रोजे में लगा है। बारिश का पानी उससे होकर नीचे की तरफ बहता है, उसे कहते हैं मीदाब रहमत। जिस दीवार पर वो मीदाब लगा है उसकी खुसूसियत है, जब सूरज निकलता है और आधी दीवार पर धूप हो और आधी दीवार पर साया हो तो ये इस बात की पहचान होती है कि जोहर की नमाज का वक्त हो चुका है। वो और है जो घड़ियां देख के फजर का वक्त तलाश करते हैं, अली का रोजा वक्त नमाज बताता है। और कितना मानूस है अली की नमाज से, सूरज अली की नमाज से कितना मानूस है। जब नहरवान की जंग खत्म हो चुकी और अली नहरवान से दूसरे की तरफ जा रहे थे, एक मरतबा अली ने फजर की नमाज नहरवान में पढ़ी। कई हजार का लश्कर साथ है, 9,000 का लश्कर साथ है, अली जा रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ के अली चले। और जब 5-6 घंटे गुजर गए तो जोहर की नमाज का वक्त आ गया, जोहर की नमाज का वक्त आ गया। अब जब वक्त नमाज आया तो जो इधर उधर चल रहे थे कहने लगे यारी वक्त नमाज आ गया है, यानी अब तुम अली को बताओ कि वक्त नमाज क्या है। जो खुद मोमिन की नमाज हो, जो खुद मोमिन की नमाज हो, उसके बारे में क्या ख्याल है? तवज्जो रहे, मेरी तरफ तवज्जो रखिएगा। अली खामोश रहे, चुप रहे, आगे चले। अब वक्त नमाज निकल रहा है, जोहर का वक्त सूरज बढ़ता चला जा रहा है और कुछ लोगों को बेकरारी हो गई, नमाज न रह जाए, नमाज निकल जाएगी। अरे भाई तुम्हारे साथ तो अली है, तुम्हें परेशानी क्या है?
अगर नमाज ना पढ़ने से जहन्नम में भी जाओगे तो जहन्नम और जन्नत का बांटने वाला तो तुम्हारे साथ है। परेशानी क्या है? दूसरी बात फिर कहा या अली वक्त नमाज आ गया, अली चुप रहे। फिर आगे बढ़ेगा या अली वक्त नमाज आ गया, अली चुप रहे। भाई तवज्जो रहे। जब ज़मीन गुजर गई जहाँ पर ये बातें हो रही थी, जब वो जगह क्रॉस हो गई तो अली ने कहा सुनो, जिस जगह तुम नमाज की बातें कर रहे थे उस पर 3 दफा अल्लाह का अज़ाब आ चुका है और 4थी मरतबा दोबारा आएगा। नबी या इमाम पर वहाँ नमाज पढ़ना या पढ़ाना हराम है। अली ने बताया नमाज वाजिब है, मगर कहाँ हराम है कहाँ हलाल है अली से पता चलेगा। वहां पर नमाज ही हराम थी, मैंने तो तुम्हें गुनाह से बचा दिया, मैंने तो तुम्हें गुनाह से बताया। जहाँ नमाज हराम थी वहां पर अब हम उस इलाके से निकल आए जहाँ अल्लाह का आज़ाब नाज़िल हुआ था। अली आगे बढ़ गए और जैसे आगे बढ़े वो एरिया खत्म हो गया, लेकिन सूरज बहुत आगे जा चुका था और मुसलमानों के मुताबिक असर की नमाज का वक्त हो चुका था और जोहर की नमाज का वक्त खत्म हो चुका। अली ने नाके रुकवाए, घोड़ों को रुकवाया और कहा वुज़ू करो यहाँ पर, यहाँ जोहर की नमाज अदा की जाएगी। अब वुज़ू हो रहा है, वुज़ू और वुज़ू के दरमियान बातें हो रही हैं। देखा अली ने हमारी जोहर की नमाज निकलवा दी। एक तो नमाजियों को कत्ल करते हैं, दूसरी तरफ हमें नमाज नहीं पढ़ने दी। अली ने हमारी जोहर की नमाज निकलवा दी। ये जुमले कौन कह रहा है? कौन कह रहा है? जो कुछ देर पहले अली की हिमायत में जंग कर रहे थे। पता चला हर उस शख्स पर यकीन मत करना जो अली के साथ है, अपनों में भी दुश्मन हो गए हैं अली के। खुदा सलामत रखे। वुज़ू मुकम्मल हुआ, आखिर जुमले सफ़े लगा दी गई, सफ़े लग गई। अली आगे मुसल्ले पर बैठे ताकि नमाज पढ़ाएं। मुअज्जिन अली के बराबर में आ गया। अली ने कहा आज़ान दो, आज़ान दो। उसने अली की तरफ देखा और देखा कि या अली कौन सी नमाज की आज़ान दो? अच्छा ये कोई पूछने की बात है? आज़ान फजर की हो, ज़ोहर की हो, असर की हो, मगरिब की हो या इशा की हो, आज़ान तो एक ही होती है। पता चला अली पे तंज कर रहे थे कि आपने ज़ोहर की तो निकलवा दी, अब असर की बढ़ाएंगे या मगरिब की बढ़ाएंगे, इसलिए कि असर का वक्त भी निकला जा रहा है। अली ने चेहरे को देखा और कहा ज़ोहर की आज़ान दो। और ही नहीं समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ। वक्त निकल चुका जोहर का, असर का वक्त भी खत्म करे, मगरिब आने वाली है। जोहर की आज़ान दो, वहाँ चिंता रह गया। अब चूंकि अली इमाम और खलीफा थे, एक काम कर नहीं सकता था। इधर मुअज्जिन ने कानों में हाथ रखे, आज़ान शुरू की, उधर अली के लफ्ज़ हिलना शुरू हुए, इधर अली के लफ्ज़ हुए, उधर सबने देखा डूबता हुआ सूरज मगरिब से वापस आया। मगरिब का सूरज डूबता हुआ वापस पलटा और लोगों के कान में आवाज आई जैसे लकड़ी के ऊपर कोई आरी चला रहा होता है और ऐसी आवाज आती है, वैसी आवाज सूरज के पलटने पर आ रही थी। और सूरज ऐन उस वक्त आकर रुक गया वहां पर जब नमाज की फजीलत का वक्त होता है। इधर वक्त नमाज आया, सबके चेहरे बिगड़े। अली ने कहा नमाज सुंदरा की जाए। तकबीर कही, तकबीर कही, नमाज शुरू हुई। अब जुमला लाया ना कीजिएगा, नमाज शुरू हुई। अली पढ़ा रहे हैं, पीछे वाले पढ़ रहे हैं। सूरज अफजलियत के वक्त पर है। अली रुकू में गए, सूरज आगे बढ़ा। अली सजदे में गए, सूरज आगे बढ़ा। अली दूसरी रकअत के लिए खड़े हुए, सूरज आगे बढ़ा। अली ने फिर रुकू दिया, सूरज आगे बढ़ा। अली की नमाज पढ़ रही है, पीछे पीछे सूरज बन रहा है। उम्मत वो है जो सूरज को देखकर नमाज पढ़ती है। अली वो जिसकी नमाज देख के सूरज आगे अली वो जिसकी नमाज देखकर सूरज ज़ोहर की पढ़ाई, असर की पढ़ाई आगे का हो।
आगे क्या हो। लोग कहते हैं जैसी जोहर की नमाज असर की नमाज खत्म हुई, सूरज इतनी तेजी से मगरिब की तरफ वापस गया जैसे चलता हुआ कारा पानी में गिरता है और गिरते ही बुझ जाता है। कभी बाबिल अगर जाना हो, ईरान में बाबिल जाकर इंटरनेट में देखना, बाबिल में वो जगह आज तक मौजूद है जहाँ पर अली ने सूरज को पलटाया है। जब वहाँ लोग जाते हैं, एक मस्जिद बनी हुई है, उस मस्जिद को कहते हैं मस्जिद रद्दुश्शम्स, यानी वो जगह जहाँ अली ने सूरज पलटाया। और लोग दो रकात नमाज वहाँ जाकर पढ़ते हैं। 800 साल पुराना गुंबद उसके ऊपर बना हुआ है। हो गई मजलिस सुन ली, एक जुमला सुनो और उसके बाद मुझे इजाजत दो। खुदा सलामत रखे, गुफ्तगू कल से आगे बढ़ाएंगे। जब अली ने नमाज पढ़ाई थी उस वक्त वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। जब अली ने नमाज पढ़ाई थी उस वक्त वहाँ कोई मस्जिद नहीं थी। अली ने बता दिया मुझ में और उम्मत में यही फर्क है। उम्मत को जब नमाज पढ़नी होती है तब उम्मत मस्जिद में जाती है। मैं वो हूँ जहाँ नमाज पढ़ लो, जहाँ नमाज पढ़ लो मस्जिद बन जाती है। मैं वो हूँ जहाँ नमाज पढ़ लो मस्जिद बन जाती है। ये अली की नमाज है, ये अली की नमाज। ये नमाज चांद से पढ़ाई कि मस्जिद बन गई। लेकिन जब हुसैन अली असगर को मैदान में लाए, असगर को इस अंदाज से लाए कि लश्कर यजीद समझा हुसैन कुरान लेकर आ रहा है। भाई देखिए, आज की रात मेरे लिए नाकाबिल बर्दाश्त है, इसलिए कि मैं मौनो मोहम्मद के मसाइल बर्दाश्त करके तो पढ़ सकता हूँ। असगर के मसाइल खुदा माओ की गोतियों को सलामत रखे। भला 6 महीने के बच्चे भी जुबा किए जाते हैं और असगर वो है जो आज तक औलादों को औलाद दे रहा है। मेरा शहजादा रुबाब का दुलारा बाबुल हवाइज अली असगर, जिसकी औलाद नहीं होती, माँ जाकर धीरे से निपट जाती है और कहती है बीबी रबाब तुम्हें तुम्हारे अली असगर का वास्ता। असगर बाप की गोदी में मारा गया, धीरे से तक का निशाना हुआ, तुम्हें असगर का वास्ता बाबुल हवाइज का, हमें औलाद अदा कर दो। हो भी जाती है, गोद भर जाती है। ये बाबे करबला का हक होने का ऐलान है कि आज तक हुसैन का 6 महीने का बच्चा बेटों को तकसीम कर रहा है और औलाद दे रहा है। सैयद सज्जाद का गुलाम मिनहाल बयान करता है कि कूफे में मुख्तार आदिलाने हुसैन को चुन चुन के कत्ल कर रहा था। वही जमाना था जब मैं सैयद सज्जाद के पास गया और मैंने जाकर कहा मौला मैं कूफे से आ रहा हूँ। कूफे का नाम सुना, सैयद सज्जाद ने कहा मिनहाल ये बताओ मुख्तार की क्या खबर है। का मौला मुख्तार चुन चुन के आपके बाबा के कादिरों को कत्ल कर रहा है। सुना सुना। उसके बाद का मुख्तार ये बताओ क्या हुरमला मारा गया? सलामत रखे, किसी का नहीं पूछा, किसी के कातिल का नहीं पूछा, हुरमला का पूछा। का हुरमला पकड़ा गया? का मौला नहीं अभी तक तो नहीं आया, बस ये सुनना था। हाथ उठाए, का हुरमला ने हमारे दिल को इस तरह से छलने किया है, खुदा दुनिया में भी जलाए आखिरत में भी जलाए। मेरा हाल कहता है मैं चला मदीने से कूफे आया और कूफे में मैंने सोचा कि मैं घर जाने से पहले मुख्तार से मुलाकात कर लूं और सैयद सज्जाद का पैगाम पहुंचा दूं। जब मिनहाल मुख्तार के दरबार में पहुंचा, अभी गुफ्तगू हो ही रही थी, सारा वाकया मिनहाल सुना रहे थे। थोड़ी देर में जंजीरों की आवाज आई। मुख्तार ने पूछा कौन है? तब मुख्तार हुरमला आ रहा है, हुरमला आ रहा है, अली असगर का कातिल आ रहा है, जंजीरें बनी हैं, सामने लाके खड़ा किया गया। मुख्तार ने जलाल के आलम में हुरमला को देखा और देखकर कहा जालिम तूने रबाब की गोद उतार दी, तूने हुसैन के दिराब को खुल कर दिया जालिम। इसी वक्त बता तूने करबला में क्या किया। अगर तू नहीं बताएगा तो तेरा गला यही काट दिया जाएगा। हुरमला ने कहा मुख्तार सुनो, मेरे पास 13 तीर थे और मैंने 13 तीर जहर में भिगोए हुए थे और अपने दरगाह पर लेके मैं करबला चला। रास्ते में हिरन नजर आया, मैंने तीर चलाया,
تیر ہرن لگ گیا. اس طرح 10 تیر ضائع ہو گئے. 3 تیر رہ گئے اور تینوں تیر وہ تھے جو بڑے بڑے جانوروں کو مارنے کے لیے استعمال ہوتے تھے اور سارے نہر میں بجھائے گئے تھے. حرملہ کہتا میں لے کے چلا. عاشور کا وقت آیا. 3 تیر میرے پاس تھے, میں نے سنبھال کے رکھے. مختار کو چلا لا گیا. اللہ جانب بتا پہلا تیر تم نے کہاں چلایا؟ پہلا تیر کہا جب آپ 5 مشیرہ لے کے چلے میں نے نشانہ لیا. پہلا تیر عباس کے مشیرے پہ لگا, مشت سے پانی بہ گیا. ماتم کرتے رہو, ماتم ہوتا رہے. یہ ماتم کے دن ہے, شرمانے کی بات نہیں ہے. آل محمد ہے, گھرانے میں قیامت آئی ہوئی ہے, اس لیے ماتم کرتے رہنا. اداروں کا پہلا تیر عباس کی مشق میں لگا. اب میں ترتیب بدل رہا ہوں. کیا دوسرا تیر بدل رہا کہ جب حسین مقتل میں آئے اور چاروں طرف سے اکیلے رہ گئے, میں نے تیر چلایا, تیر حسین کی پیشانی میں پیوست ہو گیا. ماتم ہوتا ہے. تیر حسین کے سر میں پیوست ہو گیا. کا تیسرا تیر کہاں چلا؟ کا اس وقت چلا جب حسین 6 مہینے کے بچے کو لے گئے. ایک مرتبہ اشارہ ہوا, اتنا کلام حسین, حرملہ نے نشانہ لیا, تیر چلا, اصغر کے گلے پہ لگا. اصغر حسین کی گود میں پلٹ گیا. بچہ کلم گیا. ادارہ شروع قیامت کا جملہ وہی وقت تھا. حسین نے تب خیمہ کی طرف دیکھا, پردہ ہل رہا تھا. حسین سمجھ گئے رباب نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. خدا کسی کا پیدا رکھا ہے, ہاتھوں پہ لاشا, کبھی آگے بڑھے کبھی پیچھے ہٹے, رزم پہ مزہ ہی وہ تقریباً یہ ہمیں. ارے 6 مہینے کا لاشا خیمے میں کہتے جائے گا, ماں کو کیا دکھاؤں گا, ابھی مسائل ہونے دینا پھر جھولا ہے گا. حسین چلے, خیمے کے دروازے بڑھائے, پردے کو ہٹایا, ماں سامنے ہے. اصغر کو دیکھا, بے اختیار کہا مجھے نہیں پتا تھا 6 مہینے کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. 6 مہینے کے بچے بھی ذبح کیے جاتے ہیں. اصغر چلے بارگاہ فاطمہ میں. اب سنو قیامت کا جملہ, اب سنو, اور اگر برداشت کر سکو تو خدا تمہیں زندگی دے. قیامت کے جملے کہہ رہا ہو, تدفین سنتے ہو نا, علی اصغر کو اپنے ہاتھ سے بتایا تھا. اب سنو جملہ, جب حسین پہلے تو گود میں اصغر تھے, پیچھے پیچھے ماں, گود میں اصغر, پیچھے پیچھے ماں. پختہ خیمہ پر آئے تو سردار کو نکالا, اصغر کو ماں کے ہاتھ میں دیا. قبر کو کھولا, جب قبر کھود رہی تھی لاشا ماں کے ہاتھ میں پھنسایا. خدا کے سے ہمیں نہ رکھا ہے, جب قبر کھود رہی تھی لاش ماں کے ہاتھ پر, حسین نے لاشا قبر میں رکھا, سینے پہ رخسار رکھا. اصغر فاطمہ کو سلام کرنا. جو تمہیں مسائل کے پڑھوں گا ابھی روتے رہو, ماتم کرتے رہو, خدا سلامت رکھے. یہی حق ہے پیدائش کا, یہی مقصد ہے رونے کا. فاطمہ زہرا آج اصغر کے مسائل پہ رو رہی ہے اور کہا زمین یہ علی اور فاطمہ کی امانت ہے, تجھے دے رہا ہوں. اصغر کو دبایا, اوپر سے بتی ڈالی. خدا جانے آگے ماں کا کیا حال ہوا, باپ نے دن کیسے گزارے, زندگی کیسے گزاری. مگر سنو, آخر دن کا اعتبار جھولا آ جائے گا جب رباب دنیا سے گئی اور غسل نفل ہوا تو پوری زندگی رباب کا ہاتھ پہلو میں رہتا تھا,